अमेरिका में तख्ता पलट। आपको बता दें, अमेरिका में हालात बेकाबू हो गए हैं और जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आज वहां पर हो रहा है। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया है। सीधे आपको दिखाते हैं अमेरिका में भीषण हंगामे की तस्वीरें। अभी की सबसे बड़ी खबर पर लाइव कवरेज आधी रात को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। आपको बता दें, कांग्रेस बिल्डिंग में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और ये एक ऐसा दृश्य होगा जो अब तक अमेरिका के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। तस्वीर देखिए आप, ये बहुत बड़ी खबर है और यही वजह है कि आधी रात को इस खबर पर हम लाइव बने हुए हैं, क्योंकि यूएस संसद के बाहर 25,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और जो अफरा तफरी, जो माहौल वहां बना है, जिस तरह से बैरियर तोड़े गए हैं, वो अपने आप में हैरान करने वाले दृश्य हैं। रोहित हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं, तो मनीष हमारे साथ स्टूडियो जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रोहित, मैं आपके पास आऊंगा। यहां पर जो तस्वीरें हम दर्शकों को आधी रात दिखा रहे हैं, ये इतिहास में देखने को नहीं मिला। क्या कुछ फिलहाल वहां स्थिति है? देखिए, सबसे पहले शुभांकर, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आज जनवरी 6 को अमेरिका में जो बाइडेन की जो जीत थी, उसकी आखिरी औपचारिकता करने के लिए संसद के दोनों लोअर हाउस और अपर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, दोनों मिले। आज उन्हें एक मोहर लगानी थी जो बाइडेन की जीत को लेके, और इसी के चलते पिछले कई... रोहित, मैं आपको रोकूंगा। जो बाइडेन कुछ कह रहे हैं। Through war and strife, America's endured much. And we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. The work of the moment and the work of the next 4 years must be the restoration of democracy, of decency, honor, respect, the rule of law, just plain, simple decency. The renewal of the politics. It's about solving problems, looking out for one another, not stoking the flames of hate and chaos. As I said, America's about honor, decency, respect, tolerance. That's who we are. That's who we've always been. The certification of the Electoral College vote is supposed to be a sacred ritual. To affirm purpose is to affirm the majesty of American democracy. But today's a reminder, a painful one, that democracy is fragile, and to preserve it requires people of goodwill, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to the pursuit of power, or the personal interest pursuits of their own selfish interest at any cost, but of the common good. Think what our children watching television is thinking. Think what the rest of the world is looking at. For nearly 2.5 centuries, we, the people, in search of a more perfect union, have kept our eyes on that common good. America is so much better than what we've seen today. Watching the scenes from the Capitol, I was reminded, as I prepared other speeches in the past, I was reminded of the words of Abraham Lincoln in his annual message to Congress, whose work has today been interrupted by chaos. Here's what Lincoln said. He said, "We shall nobly save or merely lose the last best hope on earth." Went on to say, "The way is plain, peaceful, generous, just. A way which, if followed, the world will forever applaud and God must forever bless." The way is plain here too. That's who we are. It's the way of democracy, of respect, of decency, of honor, and commitment as patriots to this nation. Notwithstanding what I saw today and we're seeing today, I remain optimistic about the incredible opportunities. There has never been anything we can't do
when we जो do बाइडन together, को संबोधित करते बताने की कोशिश करें कि अमेरिका में आज जो this हालात है वो सही नहीं god-awful है, display फ्रेजाइल है, बहुत ही वीक है डेमोक्रेसी आज अमेरिका की। home to every वो Republican and कि Democrat and independent सभी लोगों को nation एक होकर आगे चलना होगा। must step up. This is the और United सभी को States साथ of America. There's never, अमेरिका को आगे लेके जाना ever, होगा। ever been a thing we've tried to do that we've done it together. We've not been able to do it. आज तक अमेरिका ने जब भी एक साथ एकजुट होकर काम किया है वो हमेशा उसमें सक्सेस रहा है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि आप भी God bless America. May God हमसे protect जुड़े our हैं, troops देश को आगे लेके जाएं। and all those folks at the Capitol who are trying to preserve order. Thank you, and I'm sorry to have kept you waiting. बाइडेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ी बात कही कि अगले 4 साल हमारा जो सबसे प्रमुख काम होगा वो होगा डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर करना। ये बहुत बड़ी बात है। कहा वापस, ट्रंप से कहा कि अपने समर्थकों से वापस जाने के लिए कहें, लेकिन अगले 4 साल हमें डेमोक्रेसी को वापस रिस्टोर करना होगा। ये बहुत बड़ी बात कही गई है उस अमेरिका की तरफ से जो अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब्राहम लिंकन को याद किया, लेकिन यह भी कहा कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अगले 4 साल अमेरिका की बेहतरी के लिए, 4 साल डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील की कि वो अपने समर्थकों से कहें कि वापस लौट जाएं। अमेरिका में हालात फिलहाल सही नहीं है और ये बयान उस व्यक्ति का है जिसे आगामी राष्ट्रपति दुनिया मान रही है, जो आगामी राष्ट्रपति है। और ये भी कहा उन्होंने कि इस पूरी घटना को दुनिया देख रही है। तो ये खबर आज के दिन की सबसे बड़ी दुनिया की खबर, और यही वजह किस खबर पर हम बने हैं। मनीष, जो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि अगले 4 साल अमेरिका को अपनी डेमोक्रेसी रिस्टोर करना पड़ेगा, ये दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का होने वाला प्रेसिडेंट कह रहा है। कितनी बड़ी गंभीर घटना ये। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शुभंकर, हम जिस घटना की बात कर रहे हैं ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये रियल में हो रहा है उस जगह पर जहां से पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र की लौ जलती है। और इसीलिए जब अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति, जब जो बाइडेन ये कहते हैं कि हमें अब्राहम लिंकन को याद करना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि आज उस जगह पर हजारों समर्थक हैं जहां से 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। उसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर, उसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग की सीढ़ियों पर, जहां के सीन हम दिखा रहे हैं, जहां पर के भी हजारों लोग इस समय मौजूद हैं और जिन्होंने कब्जा जमा रखा है, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो हिंसक घटनाएं हो रही है। इसी जगह पर 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। और आज यहां पर संसद के दोनों सदन, अमेरिकी संसद के दोनों सदन को एक संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। और वो जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी थी कि अमेरिका की जनता ने जो वोट देकर इलेक्टोरल्स को चुना है, उन इलेक्टोरल्स को सर्टिफाई करना था। यानी आज अमेरिकी संसद उस चुनाव परिणाम पर मुहर लगाती और उसके बाद से औपचारिक तौर पर जो बाइडेन और कमला हैरिस अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति माने जाते और फिर उनका 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होता। लेकिन उससे पहले आज वॉशिंगटन डीसी में पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों की एक विशाल रैली की और फिर उस रैली के बाद जो सारे समर्थक या ज्यादातर हजारों की संख्या में समर्थक ने कैपिटल बिल्डिंग को घेर लिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।